Hello children, how are you? Hope you are good, fit and fine. Okay. In the last video, I discussed the introduction of trigonometry, in which I told you about the trigonometry ratio. Trigonometry ratios are of 6 types: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. Today I am going to start exercise number 8.1 from the NCERT. So let's start the class. Okay, so I have written the first question on the board. In a triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24, BC equal to 7 centimeter, and we have to find sine A, cos A in the first part, in the second part sine C and cos C in the second part. So let's start. First of all, we will draw a right angle triangle. See, it is mentioned right angled at B. So I am writing B. It is your choice to keep A and C, because A and C are the acute angle triangle, acute angles. So आप यहाँ C भी रख सकते हैं, यहाँ A भी रख सकते हैं. It's your choice. Now AB is given 24 centimeters. So I am mentioning here BC is 7 centimeter. So according to the Pythagoras, I told you whole trigonometry is based on Pythagoras theorem. So in this figure, base is given, perpendicular is given. What you can find out? Hypotenuse. So in triangle ABC, as we know, hypotenuse square equal to B square plus P square. Okay, what is hypotenuse? I am writing the name. Base is 24 square, perpendicular is 7 square. So this is 576 plus 49, it will become 625. 625. Now AC is under root 625, that is 25 centimeters. Now the hypotenuse we have calculated. Now I am coming to the first point. In first point we have to find sine A. See, sine, मैंने जैसे कि पहली वाली वीडियो में बताया था, साइन क्या होता है? P upon H. P upon H. For this angle A, the perpendicular will be BC and hypotenuse is A. So the BC is given 7 centimeter. And AC we have calculated 25. So this is 7 upon 20. Similarly, we can find out cos A, which is B upon H. For this angle A, the base is AB and hypotenuse AC, which is 24 upon 25. Okay. Now we have second part also. In second part, we have to find sine C. See, formula will be same, P upon H, but there is a difference here, sine A and sine C. What is the difference here? The difference is of only angle. Here the angle is A, now the angle is C. So according to C angle, if you are taking this angle, now we need perpendicular. I told you in the last video, आप यदि एंगल C ले रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा. Now the perpendicular will be AB and hypotenuse will be same, that is AC. So the answer is 24 upon 25. Now cos C, B upon H. Now इस एंगल C के लिए what will be the base? Base will be the adjacent side, that is BC upon AC, which will become 7 upon 25. Hope this question is clear to you. Please note it down. Now come to the second question. Second question from the NCERT only. In figure, find the value of tan P minus cot R, and they have given the figure. Look at this figure. In this figure, you will observe they have given the perpendicular and they have given the hypotenuse. So what you can calculate? We can calculate base by using the Pythagoras theorem. So I am using the Pythagoras in triangle PQR.
hypotenuse square equal to b square plus t square. The hypotenuse is given 13. Base we don't know. Base, so in place of base हम क्या रख सकते हैं, QR लिख दिया मैंने, and perpendicular की जगह लिखा मैंने 12. So 169, this 12 square will come here, 144 QR square. So QR square equal to 25. Okay, so if QR square is 25, so QR equal to under root 25, that is 5 centimeter. Now what we have to find out, हमें निकालना क्या है, tan P minus quarter. तो मैं पहले tan P निकाल देता हूँ. Look at the angle. आपको ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, आपको ये चेक कर लेना है ये एक्यूट एंगल P है या R है, दोनों में से कौन सा है. So see, the tan is perpendicular upon base. जैसे कि आप ये क्वेश्चन बिगिनिंग में कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूले जरूर लिखने हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको क्लैरिटी देगा. ठीक है, याद करने कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा. और साथ साथ आपको ये भी बताना है विच इज द परपेंडिकुलर इन द बिगिनिंग क्वेश्चन. आई थिंक यू शुड राइट. ओके, सो इस एंगल P के लिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसके लिए इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द hypotenuse. So if I am talking about this angle P, so perpendicular will be QR and base will be adjacent side, that is PQ. QR we have calculated 5 and PQ is given 12. Now I will find out cot R. Cot is the reciprocal of tan. Cot किसका reciprocal होता है, tan का. If tan is P upon B, तो आपको पता है cot क्या होता है, B upon P. आप ध्यान रखेंगे, but the angle is changed now. अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं. इस एंगल के लिए what will be the base, adjacent side, that is QR, and perpendicular will be PQ. So this is 5 and this is 12. Now according to question we have to find, क्या find करना है मुझे, tan P माइनस कॉट R. अब आप देखेंगे tan P की वैल्यू आपने निकाली है 5/12 और कॉट R की वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड 5/12. नो नीड टू टेक द LCM, यू कैन कैंसिल इट. सो द आंसर इज 0. प्लीज नोट इट डाउन दिस. Okay, now come to the question number 3. Question number 3 is, if sin A equal to 3/4, calculate the value of cos A and tan A. It is very simple question. Okay, सबसे पहले आप ये देखेंगे what they have given. They have given sin A equal to 3/4. Now tell me the formula for sin. Sin, the trigonometric ratio जो sin A होता है वो क्या होता है, P/H. So first of all, I am making a right angle triangle. Okay, they have given this acute angle A, so I am keeping A here. Now B and C your choice. आप B और C को कहीं भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पर tan B दे रखा होता तो आप 90 डिग्री B नहीं रखेंगे, B को आपको यहीं रखना पड़ेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin A की वैल्यू P/H दे रखी है. sin A की वैल्यू कितनी है, P/H. अब यदि हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयरिंग करते हैं, द परपेंडिकुलर इज 3. अब लेकिन अब आप ये देखिए जो रेशियो है मे भी ये कट हो गया हो. जैसे रेशियो दे रखा है 3/4, मे भी ये रेशियो आपका 12/16 हो, सॉरी 12/16 हो. हमने इसको कट कर दिया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. हमें पता है कि एक्चुअल साइड जो है वो परपेंडिकुलर 12 था और जो हाइपोटेनियस था वो कितना था, 16. लेकिन कटने के बाद 3/4 हो गया. तो हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर को 3 नहीं मानेंगे, हम इसमें परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे, 3K मान लेंगे. नाउ परपेंडिकुलर को हमने क्या माना, 3K, एंड हाइपोटेनियस को मैंने माना 4. इज इट क्लियर? जैसे 2 पर्सन की इनकम दे रखी है 2:3, तो जनरली हम क्या करते थे, एक की इनकम को 2x मानते थे और दूसरी की इनकम को 3x मानते थे. तो सिमिलरली यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो इज गिवन 3/4, तो मैंने परपेंडिकुलर को 3K लिख लिया और हाइपोटेनियस को 4K. नाउ सिमिलर व्हाट यू विल डू, वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन विच ट्राइंगल A.
h square equal to b square plus p square. Now hypotenuse is 4k, base is, हमें पता नहीं है बेस निकालेंगे, perpendicular is 3k. So I am doing the rest part here. 4k का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16k स्क्वायर, ओके, और ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3k, आपको पता है 9k स्क्वायर. तो मैंने क्या करा, AB का स्क्वायर निकाला 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर. तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर. जनरली क्या करते हैं बच्चे, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर देते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग. इफ यदि ये स्क्वायर आपका होल स्क्वायर होता, सपोज लाइक दिस हो, तो यू कैन कट स्क्वायर टू स्क्वायर, बट दिस इज नॉट अ राइट वे. आप क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे और यहां लगाएंगे अंडर रूट. k स्क्वायर मीन्स k इंटू के, तो एक k बाहर आ जाएगा, √7 अंदर आएगा. सो दिस इज AB. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, in first part we have to find out cos A. As you know, cos A equal to base upon hypotenuse. तो इस एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AB. तो मैंने बोला आपको बिगिनिंग में ये सब चीजें लिखनी है. बिगिनिंग में लिखोगे तो क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होगा. ओके, सो हाइपोटेनियस इज AC. नाउ AB इक्वल टू, AB वी हैव कैलकुलेटेड √7k. हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन 4k, तो k से k कैंसिल हो गया, √7 अपॉन 4. ओके, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड tan A. tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC एंड बेस होगा AB. BC कितना है, BC गिवन 3k and AB given base is √7 k से k तक 3 upon √7. Okay, so this is the answer of the third question. Please note it down. Then we will start the question number 4. Okay, see the question number 4. It is given in the question 15 cot A equal to 8 and we have to find a sin A and sec A. It is similar to the question number 3. First of all, we will draw a right angle triangle. I am taking A here, B here and C here. In the question, it is given 15 cot A equal to 8. Can we write cot A equal to 8 upon 15? Okay, as you know very well, cot is the reciprocal of tan. If tan is perpendicular upon base, so this will be बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस को आप क्या मान लेंगे, 8k एंड परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, 15k. सिमिलरली नाउ यू कैन फाइंड आउट हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस निकालने के बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा. आप साइन ए निकालेंगे P अपॉन H और सेक ए निकालेंगे. सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है. तो cos is base upon hypotenuse and so sec A will be hypotenuse upon base. So this question you will try yourself. Okay. Okay, let's start the question number 5. In this question sec theta equal to 13 upon 12 and we have to find all other trigonometry ratios. Means सारे trigonometry ratio निकालने हैं. 6 तरह के trigonometry ratio होते हैं, sin, cos, tan, cosec, sec, cot. लेकिन sec थीटा तो दे ही रखा है, तो आप sec को छोड़कर बाकी सारे निकालेंगे, लाइक sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा और cot थीटा. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले वी विल ड्रॉ आ राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखो यहाँ जो एंगल है वो थीटा दे रखा है. थीटा, थीटा मीन्स एक एंगल दे रखा है, लेकिन हम ट्राइंगल का नाम जनरली ABC, PQR रखते हैं. तो आप यहाँ पर ट्राइंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है. A को कहीं भी रखो, B को कहीं भी रखो, ये आपकी चॉइस रहेगी. तो मैंने अब की बार A यहाँ रखा, B यहाँ रखा, C यहाँ. लेकिन ये थीटा दे रखा है, ये एक्यूट एंगल जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, sec थीटा इज गिवन 13 अपॉन 12. sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है. cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा आपका हाइपोटेनियस
अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज को मैंने माना 13K और बेस को मैंने माना 12K। तो एक काम करते हैं, पहले पाइथागोरस से AC निकालते हैं। सो आई एम टेकिंग इन ट्राइंगल ABC, आई एम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो 13K का स्क्वायर इक्वल होगा 12K का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। दिस मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। 13K का स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर। 12K का स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, ये बन जाएगा 144K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 25K स्क्वायर। तो AC आ जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? आपको पता है 5 होता है और बाहर आ जाएगा K। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? P/H। मैंने आपको बोला था बिगनिंग में आप जरूर लिखें कि परपेंडिकुलर क्या है, AC है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है। लेकिन थोड़े क्वेश्चन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है AC, तो जो कि AC मैंने निकाला है 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13K। K से K कैंसिल, सो इट इज 5/13। नाउ कॉस थीटा, आपको पता होगा कॉस थीटा जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इतना सोचना नहीं है। कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो इफ इट इज 13/12, तो ये क्या हो जाएगा, 12/13। नाउ वी विल फाइंड आउट tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है आपका AC जो कि दे रखा है आपको 5K और बेस इज गिवन 12K। K से K कैंसिल, तो 5/12। नाउ यू कैन फाइंड आउट कॉसेक। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक हो जाएगा 13/5, ये आप अपना आप लिखेंगे। सेक ऑलरेडी गिवन। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, जब tan 5/12 है तो कॉट आपका 12/5 हो जाएगा। ओके, होप this question is clear to you all. Okay, now we have the question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, ये आपको cos A equal to cos B क्वेश्चन में दे रखा है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सी, रीड द फर्स्ट लाइन, एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब जो राइट एंगल होगा वो C होगा। मैंने A और B को यहाँ रख दिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में देखिए आपको cos A, वी हैव cos A इक्वल टू cos B इन दिस क्वेश्चन गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ दोनों के लिए कॉमन लिख लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, AC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा, A। नाउ अब इस एंगल B के लिए, इस एंगल B एंगल के लिए बेस क्या होगा, BC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा। लुक एट हियर, वी कैन कैंसिल डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो नाउ व्हाट वी हैव नाउ, AC इक्वल टू BC। अब मेरे पास क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। आपको पता है जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। Why? Opposite angles are equal of equal size. Okay, very easy question, please note it down this. Now we have the question number 7. This is important question of NCERT. Cot theta equal to 7/8, and we have to find out two parts. First part, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and then the second part हमें फाइंड करना है cot square theta। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इस पार्ट में लग रहा होगा आपको कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहली बात तो
कॉट थीटा गिवन है आपको 7/8। हमें पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। राइट एंगल ट्राइंगल में नाम कुछ भी रखेंगे क्योंकि एंगल थीटा दे रखा है, तो मैंने ABC रखा और यहाँ पर थीटा मेंशन कर दिया। बेस के सामने हमने लिखा 7K और परपेंडिकुलर के सामने हमने लिखा 8K। नाउ आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ABC। आपको पता है हाइपोटेनियस यानी कि BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर ये हो जाएगा 49K स्क्वायर, 64K स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ फाइंड करते हैं आगे। सो BC का स्क्वायर आ जाएगा आपका 113K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। K स्क्वायर से बाहर निकल के K हो जाएगा। ये दिस इज 113 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 113 अंडर रूट में ही रहेगा और इसको हमें ऐसे। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट में देखेंगे आप, मैं सेम यहाँ कॉपी करूंगा और आप देखिए दोनों ब्रैकेट ऊपर न्यूमरेटर में सेम है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में देखेंगे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो आप ये देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर P अपॉन H कितना होगा, 8K अपॉन रूट 113K होल स्क्वायर। ओके, अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस कितना हुआ, 7K अपॉन रूट 113K का होल स्क्वायर। ओके, मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ देखेंगे K से K कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी K से K कैंसिल हो गया। 8, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8 अपॉन 113, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 113। अब मैं ऊपर नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर एलसीएम आएगा 113, तो 113 माइनस 64 और यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब 113 माइनस 64 को माइनस करेंगे तो आप ये देखेंगे कितना आएगा, 49, और 113 माइनस 49 करेंगे तो आएगा आपका 64। ओके, सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ, वी हैव टू फाइंड आउट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा 7K और परपेंडिकुलर कितना होगा 8K, तो K से K कटेगा, स्क्वायर कर देना 49 अपॉन 64। तो इसका भी आंसर 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, now let's come to the question number 8. In this question, if 3 cot A equal to 4, we have to check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन से स्टार्ट करा, दे हैव गिवन 3 cot A equal to 4, तो 3 को मैं डिवाइड में ले गया 4 अपॉन 3। cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैंने बेस को 4K माना, परपेंडिकुलर को 3K। So according to Pythagoras theorem, we have calculated AC, which is 5K. Okay. First we will take LHS. सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे 1 minus tan square A upon 1 plus tan square। तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ये 1 minus tan square upon 1 plus tan square A। 1 minus tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कह सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल।
cot 4/3 है तो tan इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 मैंने ऊपर भी रखा और नीचे भी। 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16, ऊपर नीचे एलसीएम लिया, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस हमारी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 4k और हाइपोटेनस 5k होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है p/h, तो 3k/5k का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, होल स्क्वायर खोले, दोनों को माइनस किया, 7/25। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Now come to the question number 9. In triangle ABC, angle B is given 90 degree and they have given tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और हमें फाइंड करने हैं दो पार्ट, sin A cos C प्लस cos A sin C. In the second part, cos A cos C minus sin A sin C. So let's start the first part. Okay. So first part. First of all, we will draw a right angle triangle. It is clearly mentioned in the question the angle B is 90 degree. तो मैंने B यहाँ रखा, A यहाँ रखा, C यहाँ रखा। Now they have given tan A की वैल्यू दे रखी है 1/3। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशियो में दे रखा होता है, तो परपेंडिकुलर 1, तो परपेंडिकुलर को मैंने माना 1k और बेस को मैंने लिया √3k। Now using the Pythagoras theorem we will find out AC first. So कैसे फाइंड करेंगे आपको अच्छे से पता है। इन ट्राइंगल ABC हमने लिया पाइथागोरस हाइपोटेनियस, यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 1k स्क्वायर और 3k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो AC आ जाएगा आपका √4k स्क्वायर विच इज 2k। ओके, now we will find out the value of sin A cos C minus cos A sin C। ओके, हमें फाइंड करना है साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर A एंगल भी है और C एंगल भी है, तो बहुत ध्यान से रखना है। साइन A और साइन C में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। सो सबसे पहले साइन A की बात करते हैं। इस एंगल के लिए साइन क्या होता है, p/h, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 1k और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 2k इनटू नाउ cos C। अब cos लेना है लेकिन C के साथ लेना है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा 1k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2k प्लस उसके बाद आता है हमारा cos A। अब इस एंगल के लिए cos लेना, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए बेस हुआ √3k और हाइपोटेनियस 2k। नाउ उसके बाद आता है sin C। इस एंगल के लिए sin C, sin होता है p/h, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k अपॉन 2k। अब आप देखेंगे यहाँ पर k से k सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 1 1 जा हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4, √3 की √3 से 3 और 2 2 जा 4। नाउ वी विल टेक द एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 4/4। ओके, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन and try and do the second part. Okay, this is very important question of exercise number 8.1. So there is a triangle PQR, angle Q is 90 degree, PR plus QR is given 25 and individual PQ is given 5 centimeter. We need to calculate sin P, cos P and tan P. सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं।
ओके, अब तो आपको सबको पता चल गया होगा कैसे कैसे करना होता है। तो मैंने इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर रखना है। एंगल क्यू जो है 90 है। सारे एंगल पी में पूछ रहे हैं तो मैंने पी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पी नीचे रख लिया और आर आपका यहाँ। सबसे पहले आप देखेंगे पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा। ओके, सी दे हैव गिवन पी आर प्लस क्यू आर, कितना दे रखा है 25। अब देखो यहाँ पर पी आर का मतलब है हाइपोटेनियस और क्यू आर का मतलब है आपका परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों का सम 25 है, लेकिन हमें इंडिविजुअल नहीं पता कि परपेंडिकुलर अलग से कितना है और हाइपोटेनियस अलग से कितना है। तो हम क्या करेंगे, पी आर की जगह मैंने लिख दिया ये क्या है हाइपोटेनियस, क्यू आर क्या है ये परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, यहां से मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल देता हूं इन टर्म्स ऑफ एच। सो वी कैन राइट परपेंडिकुलर इक्वल टू पी इक्वल टू 25 माइनस एच। पी निकालेंगे तो एच उतर के माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, बेस दे रखा है 5, बेस कितना है 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 25। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करा है कितना 25 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वी विल यूज ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 25 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 50h। ओके, नाउ यू विल सी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 50h इधर आके क्या हुआ प्लस का हो गया। नाउ 625 प्लस 25 650, हाइपोटेनियस विल बी 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो हाइपोटेनियस हमारा 13 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ हाइपोटेनियस 13 है तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्या निकालना है, साइन पी। साइन क्या होता है पी अपॉन एच। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, कितना है परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है हमने निकाला है 12 अपॉन 13। नाउ कॉस पी निकालना है, क्या होता है कॉस पी, बी अपॉन एच। बेस कितना है, बेस गिवन है बेस 5 अपॉन 13 एंड tan पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका है 12 और बेस है आपका 5। सो दिस इज द आंसर। होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू, प्लीज नोट इट डाउन।